Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on financial instruments under Ind AS 32, 107 and 109 with major topic on convertible preference shares. So first let us have a basic idea of convertible preference shares. So we know that convertible preference share, also called as CPS, is an instrument which is converted into equity shares on redemption or before maturity. It means when preference share is converted into equity, it is called convertible preference share. And the number of shares which we receive against one preference share, this is called conversion ratio. But sometimes the conversion ratio may change or it may fluctuate over different time periods. So let us say under different circumstances, whether convertible preference share will be treated as equity transaction or financial liability as per Ind AS 109. So it means it depends upon the conversion ratio. So first possibility is conversion ratio is fixed. For example, you get 5 shares for every one preference share. So this is fixed. Or sometimes the conversion ratio may change with time period. It means if a preference share is converted within 3 months, within 6 months, within 1 year, ratio may change. Or third possibility is conversion ratio changes to protect the rights of shareholders. Sometimes new shares are issued to equity shareholder. In that case, ratio may be changed for preference shareholder also. Fourth possibility is conversion ratio changes over independent scenarios in future time period. तो मीन्स आपके पास डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उसके बेस पे आपकी कन्वर्जन रेशो चेंज हो सकती है. सिनेरियो क्या है, आपकी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट है, कितनी आपकी कोलैबोरेशंस हैं. सो इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेज, सो द प्राइस पर शेयर इज फिक्स्ड एंड सो दीज आर सर्टेन इवेंट्स एंड फिक्स्ड इवेंट्स हैं, देयरफॉर इट इज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन. तो इस केस में जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है उसके अंदर आपने इक्विटी इशू करना है फ्यूचर में, तो ये आपकी इक्विटी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी. इट इज नॉट फाइनेंशियल लाइबिलिटी. Then another other situation is number 8. Conversion ratio changes to protect return. Return means dividend to shareholders. तो कई बार होता है कि आपने मिनिमम इतना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, उसके लिए हम उसकी रेशो चेंज कर रहे हैं. और अनदर पॉसिबिलिटी इज conversion ratio changes over time period under different scenarios and these scenarios are dependent. तो कुछ सर्टेन इवेंट्स अराइज होंगी फ्यूचर में बट दे आर डिपेंडेंट और उसके बेस पर आपकी कन्वर्जन रेशो चेंज हो जाएगी. तो इस केस में हम कहते हैं कि अब आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने को इशू करने हैं अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर, ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं क्योंकि आपने मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड करनी है या कुछ सिनेरियोस आपकी डिपेंडेंट हैं. तो जब आपके नंबर ऑफ शेयर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वेरिएबल हैं एंड नॉट सर्टेन, और ये इवेंट भी सर्टेन नहीं है, तो इन दैट केस इट इज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन. तो उस केस में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इन फ्यूचर, उसको हम एज ए लाइबिलिटी शो करेंगे अपनी बुक्स में. तो नाउ लेट अस डिस्कस केस सिनेरियो. So we are giving that Gold Limited has issued convertible preference shares to raise capital for long-term finance to its different investors on different terms during current financial year. So evaluate whether issue of convertible preference shares by Gold Limited represents equity transaction or a financial liability transaction. तो आपको डिफरेंट केसेस दिए हैं. नंबर 1 केस इज we are given that on 1st January of current financial year, so A Limited subscribes to convertible preference shares of Gold Limited and conversion ratio varies as below. Up to 31st March of current financial year, so one equity share of Gold Limited for each preference share, तो आपकी जो रेशो है ये चेंज हो रही है. तो अप टू 31st मार्च को करंट ईयर आपको 1 शेयर मिलेगा. अप टू 30 जून ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1.25 शेयर्स आपको मिलेंगे. एंड अप टू 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1.5 इक्विटी शेयर्स ऑफ गोल्ड लिमिटेड फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड. इट मीन्स कंपनी यदि आपको डिले कर रही है तो आपको नंबर ऑफ शेयर आपके चेंज हो रहे हैं. तो आपको डिटर्मिन करना है वैगर दिस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इज क्लासीफाइड एज इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी. तो लेट अस सी नंबर 1 केस को आपको मेंशन किया है गोल्ड लिमिटेड ने. तो हैज इशूड
convertible preference shares. The number one case is to investor is A Limited and these are issued in current financial year जो को आपका चल रहा है जिसे current financial year as on January 1 shares are issued and it will end on 31st March. तो अपने शेयर जो आपने इशू किए हैं तो उसकी रेशो आपको दी है इफ़ दीज आर कन्वर्टेड अप टू 31st मार्च बट जो कन्वर्जन रेशो वो आपको मेंशन की है. आपको 31st मार्च कंपनी विल गिव 1 शेयर फॉर एवरी 1 प्रेफरेंस शेयर रेशो 1:1. इफ इट इज कन्वर्टेड अप टू 30th June देन रेशो विल बी अवर. सो इफ इट इज 30th June then ratio is 1.25 ratio 1 and if it is converted on 30th September then our ratio is 1.5 ratio 1. तो मीन्स आपकी जो रेशो है वो चेंज हो रही है. तो whether it will be equity transaction or it is financial liability. So our answer is it is equity transaction. तो उसका रीजन है आपका ईच सिनेरियो जो है आपका वो इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट एंड देयर इज सर्टेनिटी और ये सर्टेन है. मीन्स हाउ मेनी शेयर विल बी इशूड दिस इज सर्टेन और जो प्राइस है वो भी आपका फिक्स्ड है. इट मीन्स वी कैन से दैट नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू करने हैं दीज आर सर्टेन ऑन पर्टिकुलर डेट एट फिक्स्ड प्राइस. तो देयरफॉर इट इज इक्विटी ट्रांजैक्शन. तो ये आपकी मानी जाएगी इक्विटी ट्रांजैक्शन. You can see which option is correct. Answer is option number B is correct. So next we have a second scenario. It is given that on 1st January of current financial year, so B Limited subscribes to convertible preference shares of Gold Limited. Preference shares are convertible in the ratio 1:1. The terms of instrument entitled Gold Limited to proportionately more equity shares. So in case of a stock split or bonus issue. तो फर्दर आपको मेंशन किए हैं आपकी रेशो 1:1 है पर देखिए फ्यूचर में कंपनी बोनस शेयर इशू करती है या स्टॉक स्प्लिट होता है देन यू विल गेट प्रोपोर्शनेटली मोर शेयर्स एंड एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट. इसमें जो आपको मेंशन किया है अब गोल्ड लिमिटेड ने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स दीज आर इशूड टू अनदर इन्वेस्टर बी लिमिटेड. तो प्रेजेंटली एज ऑन January 1 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर रेशो आपको मेंशन की है दिस इज 1:1. बट दिस रेशो में चेंज इन फ्यूचर ड्यू टू बोनस और स्टॉक स्प्लिट. उसका बेसिक पर्पज है क्या है जब आपने प्रोपोर्शनेटली उनको और शेयर इशू करने हैं या उनके रिड्यूस करने हैं ड्यू टू बोनस और स्टॉक स्प्लिट इट मीन्स अवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ शेयर होल्डर्स. तो इसमें हमने उनका राइट प्रोटेक्ट करने हैं टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ शेयर होल्डर्स. राइट में क्या है कि यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 30% इक्विटी मिल रही है ऑन कन्वर्जन तो उनके जो प्रपोर्शनल राइट है 30% वो आपका मेंटेन रहना चाहिए. इन दिस केस इट मीन्स इट इज इक्विटी ट्रांजेक्शन. इक्विटी हो क्या कि प्रपोर्शनल शेयर कितना रहेगा आपका नेट केसेस में वो आपका सेम रहेगा 30%. इट मीन्स एक इक्विटी ट्रांजेक्शन दिस इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी. सो अगेन अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इट इज इक्विटी ट्रांजेक्शन. So next we have a third scenario we are giving that on 1st January of current financial year C Limited subscribed to convertible preference shares of Gold Limited at ₹100 per share. Preference shares are convertible in the ratio of 10:1 that is 10 equity shares for each preference share held and C Limited is entitled to 25% stake in Gold Limited through equity shares. But further it is given that if subsequent to the issue of these convertible preference shares Gold Limited issued any equity instrument at a price lower than ₹10 per share, conversion ratio will change to compensate C Limited for dilution in its stake below the expected dilution at a price ₹10 per share. पर आपको मेंशन किया है कि फ्यूचर में गोल्ड लिमिटेड फर्दर शेयर इशू कर रही है तो उस केस में और वो भी हम लो प्राइस पे इशू कर रहे हैं कुछ शेयर होल्डर को देन दिस इन्वेस्टर सी लिमिटेड विल आल्सो गेट एडिशनल शेयर्स एंड दैट विल बी एट ए प्राइस बिलो ₹10. सो एग्जामिन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी और इक्विटी.
तो इस केस में आपको मेंशन किया है, देखो गोल्ड लिमिटेड की इशू जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स टू सी लिमिटेड। तो इनिशियल जो आपकी रेशो है तो जिसे कि 10:1, तो अगेंस्ट 1 शेयर यू आर गेटिंग 10 शेयर्स, इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर है आपका ₹100 का, तो यू विल गेट इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। बट यदि कंपनी नए शेयर इशू करती है, न्यू शेयर से इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दीज आर इशूड एट लेस दैन ₹10, तो उस केस में यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई लॉस हो रहा है उनकी इनकम में, तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। इट मीन्स इफ देयर इज ए लॉस इन इनकम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड दैट विल बी compensated by issue of further shares। इट मीन्स इस केस में हम कह सकते हैं कि अब आपकी जो कन्वर्जन रेशो चेंज हो रही है, सो दिस इज टू प्रोटेक्ट, वी कैन से दैट रेशो चेंजेज टू प्रोटेक्ट इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनकम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मीन्स उनका राइट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रपोर्शनेट, बल्कि उनकी इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, सो देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो इट इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी of gold limited. So therefore correct option is, you can see option number C is correct. It is a financial liability. So then we have 4 cases on 5 January of current financial year. GE Limited subscribes to convertible preference shares of Gold Limited at ₹100 per share on a fully diluted basis. GE Limited is entitled to 25% stake in B Limited through equity share. The preference shares are convertible at fair value, subject to GE's stake not going below 15% and not going above 40%। तो इसमें हम देखो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे उनको मिलेगा 25% स्टेक। बट फ्यूचर में हम प्रेफरेंस शेयर की जो रेशो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट उनका जो स्टेक है इट इज़ नॉट बिलो 15% एंड इट इज़ नॉट अबव 40%। तो नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स इन दिस केस shares are issued to GE Limited, so ratio is given, this ratio is fixed, so that they get 25% stake। उनका जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो बन जाएगा थ्रू इक्विटी 25%। बट देयर इज ए कंडीशन, पर आपकी कंडीशन है इस केस में, बट दिस इट शुड नॉट फॉल बिलो 15% एंड इट शुड नॉट राइज अबव 40%। तो ऑब्जेक्टिव है कि हमने इनको 25% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे करना है। तो इट मीन जब आपकी रेशो, इसका मतलब है कि चेंज हो सकती है, सो दैट आपका स्टेक चेंज हो रहा है इस केस में, तो अब हमने स्टेक को मेंटेन नहीं किया, स्टेक की चेंजिंग उससे उनकी इनकम भी चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स इन दिस केस वी कैन से दैट रेशो वेरी कर रही है आपकी टू मेक सो चेंज इन स्टेक। स्टेक मीन्स जो उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इट मीन्स which will also affect return, means income of preference shareholders। It means objective is to protect income of preference shareholders। इक्विटी तब मानी जाती है जब आपका स्टेक हमने प्रोटेक्ट करना है, परसेंटेज सेम रहनी चाहिए, पर इसमें आपकी परसेंटेज चेंज हो सकती है, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली हम उसकी इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट नॉट इक्विटी ट्रांजेक्शन, सो इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। So next we have a fifth case scenario. So we are given on 5 January of current financial year. So E Limited subscribes to convertible preference shares of Gold Limited, which are convertible as below. So first is convertible 1:1 if another strategic investor invests in the issuing company within 1 year. Second is convertible ratio is 2:1 if IPO is successfully completed within 2 years. Then it is given convertible into 3:1 if a binding agreement for sale of majority stake by equity shareholder is entered into within 3 years। तो डिफरेंट अब आपकी कंडीशंस हैं, सिनेरियोस हैं, उसके बेस पे आपकी रेशो चेंज हो रही है और टाइम पीरियड आपका चेंज हो रहा है। सो वी हैव टू एग्जामिन वेदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी और फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी।
तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है जैसे ये अवर गोल्ड लिमिटेड तो इशू convertible preference shares to E Limited and these are issued on January 1 of current financial year and these are convertible within 1 year। तो उस केस में आपकी जो कन्वर्जन रेशो है जिसे गिवन है टू बी अवर 1:1 और उसकी कंडीशन है सो इफ अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द इशूइंग कंपनी, कोई और इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, सेकंड ही कैन बी कन्वर्टेड विद इन 2 ईयर्स। इट मीन्स कि किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया फिर तो आपको 1:1 में शेयर मिल जाएंगे। अदरवाइज सेकंड कंडीशन है इफ IPO is successfully completed within 2 years then ratio is 2:1। so IPO is launched और फिर फर्स्ट केस में था आपका अगर इन्वेस्टर एंटर्स then it will within 3 years your ratio is 3:1 and here condition is if a binding agreement for sale of majority stake by equity shareholders is entered। देखिए आपका कोई अग्रीमेंट साइन होता है फॉर सेल ऑफ मेजोरिटी स्टेक बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, then you will get 3 shares for every 1 share but all these scenarios जो हैं आपके these are independent। it means the second or third scenario doesn't depend upon previous scenario so therefore we can say that the number of shares आपके फिक्स हैं और के इवेंट आपकी सर्टेन है फिक्स है so therefore it is equity transaction। ये आपकी इक्विटी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी and this is not financial liability so hence correct option is option number B। so next we have case number 6 on 1st January of current financial year F Limited subscribes to convertible preference shares of Gold Limited which are convertible as below। so convertible into 1:1 if another strategic investor invests in the issuing company at an enterprise value of rupees 200 crores। second scenario is convertible into 2:1 if another strategic investor invests at an enterprise value of rupees 250 crores। third possibility is convertible into 3:1 if no strategic investment is made within 3 years। examine whether the financial instrument will be classified as equity, financial liability और financial asset। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है गोल्ड लिमिटेड हैज इशूड convertible preference shares to F Limited, इन्वेस्टर इज F Limited और इसमें भी सेम रेशो हैं आपकी these are convertible within 1 year इनका रेशो ऑफ 1:1 within 2 years इनकी रेशो 2:1 within 3 years इनका रेशो 3:1। तो फर्स्ट केस में है इफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मेक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 200 crores so strategic investor invests rupees 200 crores but if first condition is not satisfied then second condition for second year is investor invests rupees 250 crores then third condition is given third year and if no strategic investment is made no investment made तो इतनी तीनों में कंडीशन एक ही है कि किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और इट मे बी अप टू 200 और इट मे बी अप टू 250 करोड़ से। सो वी कैन से दैट ऑल दीज जो आपके इवेंट्स हैं दे आर डिपेंडेंट, ये इंटर डिपेंडेंट है। जिसमें कि इंडिपेंडेंट नहीं है डिपेंडेंट है तो उस केस में अब आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज नॉट इक्विटी ट्रांजेक्शन, इट विल बी कंसीडर्ड एज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी। So hence correct option is option number C। So in this lecture we have discussed a case scenario based on convertible preference shares under Ind AS 32, 107 and 109। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।